اتکلو کلیوگ کے اندر، اتکلو کلیوگ کے اندر گرد پر آئے، کچھ زمانہ گزر جانے کے بعد کلیوگ غیروں کے یہاں، غیر مسلمین کے یہاں 4 زمانہ ملتے ہیں، 4 زمانے پائے جاتے ہیں. آپ پڑھیے اور اس کتاب کو آپ اگر پڑھیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے یہاں، ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے کی یہ کتاب ہے، بہت جامع کتاب ہے. اس کتاب کو آپ پڑھیں، باقاعدہ اس نے لکھا ہے کہ 4 زمانے ان کے یہاں پائے جاتے، 4 زمانے، ستیگ، تریتا یگ، دوپر یگ اور کل یگ. یہ 4 زمانے پائے جاتے ہیں. ستیگ گیا، دوپر گیا، تریتا یگ بھی کے چلا گیا، اب صرف کل یگ باقی ہے. ان کے حساب سے کل یگ باقی ہے، لیکن جو بھوشیوانیاں بتائی گئی ہیں، جو چیزیں بتائی گئی ہیں، ان سے بالکل یہ بھی واضح ہو جاتا کہ کل یگ بھی چلا گیا. کل یگ کے اندر لاسٹ رشی منی آئیں گے، کل یگ کے اندر لاسٹ نبی آئیں گے، کل یگ کے اندر لاسٹ رسول آئیں گے. اور جب وہ رسول آئیں گے کل یگ کے اندر جائیں گے، گٹ پر آئی جنیش، ایسے زمانے میں ایسے دور میں آئیں گے، ایسے زمانے میں آئیں گے لوگ جانوروں جیسی زندگی گزارنے لگیں گے. لوگ جانور جیسی زندگی گزاریں گے، نہ کھانے کا طریقہ ہوگا، نہ پینے کا طریقہ ہوگا، نہ بیٹھنے کا شعور ہوگا، نہ میاں بیوی ملے کس طرح جاتے ہیں نہ ان کو یہ بھی طریقہ معلوم ہوگا، نہ عبادت کیسی کی جاتی نہیں ہے یہ بھی طریقہ اسے پتا ہوگا. اس کے باوجود وہ اتنے زیادہ گرے ہوئے ہوں گے کہ وہ اپنے ہی بچے کو، اپنے ہی بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ دفن کرنے والے ہوں گے. میرے پیارے ساتھیوں، اس دور کو دیکھو جس دور میں جناب محمد رسول اللہ تشریف لائے، اس زمانے کو دیکھو. لوگ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارا کرتے تھے، جانور سے بھی بدتر زندگی گزارا کرتے تھے. آج جانوروں کو دیکھو، چاہے جانور کیسا بھی ہو، کتے جیسے جانور کو دیکھو تب بھی وہ جانور اپنے بچوں کی کس طریقے سے پرورش کرتا ہے، اسی طریقے سے دیگر جانوروں کو دیکھو وہ اپنے بچوں کو کیسی پرورش کرتا ہے. لیکن ایک انسان کی زندگی کو دیکھو، اس دور کے اندر ذرا دیکھو، بچیاں پیدا ہوا کرتی تھی، اس کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا، زمین کے اندر زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، کو تو جانور سے بھی بدتر تھے، جانور سے بھی زیادہ آگے نکل چکے تھے. ایک ماں کے ساتھ زنا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اس زمانے کے اندر اگر باپ کو انتقال ہو جاتا اور لوگ اگر زندہ ہوتے، ان کے بیٹے زندہ ہوتے، سگی ماں نہ ہوتی بلکہ اور دوسری مائیں ہوا کرتی تھی، تو اس ماں کے ساتھ اسی کا بیٹا ہم بستری کرتا، زنا کرتا اور باپ کے اسے بستر کے اندر سوتا. یہ ساری برائیاں موجود. اور اتنا ہی نہیں، باقاعدہ زنا کی انتہا تو ذرا دیکھو. اور صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی کتاب الرحیق المختوم اٹھاؤ، اتنا لکھا ہوا ہے کہ لڑکیاں اپنے سیکس کو پورا کرنے کے لیے، لڑکیاں اپنے حوش کو پورا کرنے کے لیے جھنڈے لگا لیا کرتی تھی، گاڑ لیا کرتے تھے، تاکہ اگر مرد حضرات جوان اپنے خواہشوں کو پورا کرنا چاہے، اپنے سیکس کو پورا کرنا چاہے، تو جوان کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہیں دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جھنڈا دیکھو، نو انٹری، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. آؤ جوانوں، اپنے خواہشوں کو پوری کر لو. یہ اس دور کی بات میں بتا رہا ہوں جس دور میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا. غور کرو،
यही तो वो जमाना था जिसको इत्तकलौकत परा जनेशु घर घर में कहा गया। जिस जमाने के अंदर वो पैदा होंगे, लोग जानवरों जैसे जिंदगी गुजारा करेंगे, लोग जानवर जैसे जिंदगी गुजारा करेंगे। न खाने का तरीका, न पीने का तरीका, न उठने का, न बैठने का तरीका, ये सारी चीजें उसके अंदर मौजूद होंगी, ये सारी बुराइयां उसके अंदर मौजूद होंगी। और सबसे बड़ी बुराई उसके अंदर यही पाई जाएगी कि अल्लाह को छोड़ करके वो गैरों की इबादत करने लगेंगे। अल्लाह की कसम, उस अरब वाले ने, उस मक्का वालों ने और मदीना वालों ने अल्लाह को छोड़ करके एक की नहीं, दो की नहीं, बल्कि उसी खाने काबा के अंदर 360 मूर्तियां रखी हुई थे और 360 मूर्तियों की लोग इबादत भी किया करते थे। 360 मूर्तियों की लोग इबादत और पूजा भी किया करते थे। उनसे बाकायदा अपने मुरादें पूरा, अपने मुरादें रखा करते थे। ये सारे बुराइयों उस जमाने के अंदर मौजूद थे, ये सारी बुराइयां उस जमाने के अंदर पाई जा रही थे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी दुनिया, उसी जमाने के अंदर पैदा हुए, उसी जमाने के अंदर अल्लाह ताला ने भेजा और बाकायदा उनकी किताबों में इतना लिखा हुआ है, वो विष्णु यश के अंदर पैदा होंगे, विष्णु यश के बेटे होंगे। विष्णु यश, यश मतलब होता बंदा, विष्णु मतलब होता अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, विष्णु यश यानी अल्लाह, अल्लाह विष्णु मतलब अल्लाह, यश मतलब बंदा। और जब अरबी में ट्रांसलेशन किया जाए तो होगा अब्दुल्ला, यानी अब्दुल्ला के वो बेटे होंगे। अल्लाह की कसम, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला। और अगर माँ के नाम को देखें तो आप ताज्जुब करेंगे, आप आश्चर्य रह जाएंगे और आप हैरत करेंगे कितनी आपस में मिली जुली बातें हैं, फिर भी ये हम दोनों आपस में फिर बटे हुए क्यों हैं? फिर भी हम आपस में ये क्यों कहते हैं ये तेरा मजहब, ये मेरा मजहब है? कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी? ये तो कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी? ये हवा तो किसी दुश्मन ने उड़ाई हुई होगी। आओ जरा देखो, जरा अपनी किताबों को तो पढ़ो मेरे प्यारे साथियों। तुम्हारी किताब के अंदर बाकायदा इतना लिखा हुआ है, भविष्य पुराण को उठाओ, भविष्य पुराण को उठाओ, उसके अंदर बाकायदा इतना लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ, सोमती वो सोमती के घर के अंदर जन्म लेंगे। सोमती के घर के अंदर वो लास्ट नबी, वो ऋषि मुनि, वो शहजादा, द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड, वो दुनिया का शहजादा किसके यहाँ? सोमती के यहाँ। सोमती मतलब अमन वाली के यहाँ पैदा होंगे, अमन वाली के पेट के अंदर से जन्म लेंगे। अल्लाह की कसम, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अमन वाली के घर के अंदर जन्म लिया। आमना के बतन से पैदा हुए, आमना के पेट से पैदा हुए। अल्लाह की कसम, ये सबको मालूम है। और कहाँ पैदा होंगे और कब पैदा होंगे ये भी बाकायदा पूरी भविष्यवाणियां मौजूद है, पूरी की पूरी बातें मौजूद है। गटपराय जनेशु घर घर मिले, जब इंसान जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने लगेंगे, घर घर मिले। धर्मत्तराय सतवैन भगवान उत्तरिष्यति, जब रब को छोड़ करके गैरों की इबादत होने लगेगी, तब अल्लाह लास्ट ऋषि मुनि को भेजेगा, तब अल्लाह आखिरी पैगंबर और रसूल को भेजेगा, तब अल्लाह अपने लास्ट नबी को भेजेगा, लास्ट रसूल को भेजेगा। वो आएंगे दुनिया के अंदर, वो आएंगे धर्मत्तराय सतवैन भगवान उत्तरिष्यति, भगवान नहीं आएंगे बल्कि भगवान भेजेंगे, रब दुनिया के अंदर भेजेंगे। अल्लाह के कसम, अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा, अपने नबी को भेजा, अपने नबी को भेजा। धर्मत्तराय सतवैन भगवान उत्तरिष्यति तथस्तु शंबलगराम सौते से उजविजाति विवर्जिता। और कहाँ आएंगे? शंबलगराम के अंदर वो पैदा होंगे, शंबलगराम के अंदर वो पैदा होंगे। सेवते से उजविजाति विवर्जिता, वो तो शंबलगराम के अंदर अमन वाली जगह भी आएंगे, जिसको कुरान ने हाज़ल बलदिल अमीन करार दिया है, यानी बलदुल अमीन के अंदर पैदा होंगे। अल्लाह के कसम, उससे बलदुल अमीन वाला शहर मुराद है, वो मक्का ही, वो मदीना है, उसको मक्का ही शहर करार दिया जाता है। और बलदुल अमीन वही है, शंबलगराम वही है, उसी
मक्का को शंबल गराम करार दिया गया। उससे बढ़ कर के अमल वाली जगह मैंने कायनात में नहीं देखा है, उससे बढ़ कर के अमल वाली जगह आज भी कोई कायनात में नहीं है। अगर आज मक्का आप भी जाओ, अल्लाह की कसम आज मक्का और मदीना का सफर करो, आपको इतनी शांति मिलेगी और इतना अमन आपको दिखेगा। कोई औरत कोई लेडी जर्रा बराबर ये नहीं डरती नहीं मेरे साथ गैंग रेप होगा, मेरे साथ गलत काम होगा, मेरे साथ छेड़खानी होगी। मैं जब मदीना से मक्का की तरफ में जाने लगा, जब मैं ताइफ गया था, एक प्रोग्राम में मुझे ताइफ जाना हुआ और जब मैं ताइफ गया और ताइफ से जब मुझे जाने लगा, वहाँ से मैंने जुल्हलीफा से मैंने इहराम बांधा और मैंने एहराम बदा के चलो अपने वालदा के नाम पे मैं भी उम्रा करूं। एक उम्रा तो मैं कर चुका था, मैं अपने वालदा के नाम पे उम्रा करूं। जब मैं वहां से निकला क्या देखता हूं, एक 4 व्हीलर पे मैं जा रहा था, एक कार से मैं मक्का की तरफ सफर कर रहा था और जब उस कार के अंदर मैं पहुंचा, क्या देखा है कि लेडी बाकायदा बैठी हुई है, निकाब की हालत में बैठी हुई है, ड्राइवर के बगल में बैठी हुई है, तन्हा बैठी हुई है, पीछे वाली सीट में हम लोग बैठे। उस लड़की को जर्रा बराबर कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। वो शायद के अपने शौहर से मिलने के लिए मक्का जा रहे थे, शायद के वो अपने शौहर से मुलाकात के लिए या किसी काम से वो मक्का जा रहे थे। उसने बाकायदा उतना सफर 80 किलोमीटर का सफर हमारे साथ तय किया, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं और मुझे वहां पे कोई जर्रा बराबर एहसास तक भी नहीं हुआ डर का। वो अमन वाली जगह मैं देख करके आया हुआ हूँ। मेरे साथियों इतनी शांति है, उसको अब हाज़ल बलदिल अमीन ही कहा जा सकता है, उसी को शंबल गराम कहा जा सकता है और उसी जगह जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उसी जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का काम शुरू किया, उसी जगह आए। सौती से जीव जाति विवज्जिता, उनकी किताब के अंदर इतना लिखा हुआ है, सौती से जीव जाति विवज्जिता। वो लास्ट नबी जो आएंगे वो ऊंची ऊंची जगह में खड़े होकर के लोगों को दावत देंगे। आइए जरा कुरान करीम की उस आयत को देखें जिसको कहा गया या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। वो नबी दावत देने वाले होंगे, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत शुरू की, कहां से? अपने यहाँ से, अपने घराने से, अपने कौमों, अपने खानदान के लोगों के बीच से। सभा पहाड़ के ऊपर चढ़े, आप वहां चढ़ करके लोगों को बुलाया। सौत से जो जाते विवर्जिता, ऊंची जगह पे खड़े होकर के लोगों को दावत देंगे, ऊंची जगह पे खड़े होकर के दावत देंगे। सभा पहाड़ देखिए, हालांकि आज उतनी बड़ी बड़ी पहाड़ें नहीं है, वो पहाड़ियां छोटी हो गई है। हाजी लोग जाते हैं वहां पे तो सफा मरवा का तवाफ जब तक न कर ले तो उनका हज कंप्लीट नहीं होता, या उम्रा करने वाले का वो उम्रा कंप्लीट नहीं होता जब तक उसके दरमियान दौड़ न लगा ले। उसी एक पहाड़ के अंदर बिल्कुल मक्का के सामने वो एक पहाड़ है, सफा पहाड़ और मरवा, जिसको कुरान ने इस अंदाज से कहा है इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। इन दोनों पहाड़ियों को अल्लाह ताला ने अपने निशानी करार दिया है, निशानी बताया है। मेरे प्यारे साथियों, उसी पहाड़ के ऊपर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह चढ़े, उसी पहाड़ी के ऊपर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हुए और उसी पहाड़ी से आवाज लगाने लगे, उसी पहाड़ी से आप निदा लगाने लगे, उसी पहाड़ी से आप ऐलान करने लगे, ओ मक्का के लोगों और मेरे खानदान के लोगों और कुरैश के लोगों, ऐ फला फला कबीले वालों। उस जमाने में अगर कोई अहम बात बतानी होती थी तो लोग ऊंची जगह पे खड़े होकर के लोगों को बुलाना शुरू कर देते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात जैसे लोगों ने सुनी, अरे अमीन हमें बुला रहे हैं, सादिक
हमें बुला रहे हैं, ऐसे आदमी हमें बुला रहे हैं जो आज तक कभी झूठ नहीं बोला, आज तक कोई गलत काम नहीं किया। अरे वो अमीन हमें बुला रहे हैं, कभी अमानत में खयानत नहीं की, कभी हमारे अमानतों के अंदर कभी खयानत नहीं की, कभी उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, वही आज हमें बुला रहे हैं। चलो चलो, क्या बात है, क्या बात है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास के मक्का वाले जमा हुए, अलग अलग खानदान वाले जल्दी जल्दी जमा हो गए। नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जैसे ही देखा मेरे चारों तरफ लोग खड़े हो गए, मेरे एक बुलाने पे पूरा मक्का दौड़ करके चला आया है। और बुलाया, जैसे लोग आए नबी अकरम ने ऐलान किया, लोगों तुम्हारे दरमियान मैंने 40 साल जिंदगी गुजारी है, मैंने तुम्हारे दरमियान 40 साल रह चुका हूँ, तुम मेरी पूरी लाइफ को जानते हो, मेरी पूरी जिंदगी को जानते हो। आई मक्का वालो, बताओ तुमने मुझे कैसा पाया है, बताओ तुमने मुझे कैसा पाया है। मक्का वाला बाकायदा बैक वक्त में एक ही जबान में यही कहते हैं, कालू मा जर्रबना इल्ला सिद्का। ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, ऐ हमारे अमीन, ऐ हमारे सादिक, ऐ हमारे अमीन, हमने आपको अपनी जिंदगी में कभी झूठ बोलते हुए नहीं पाया, जब भी देखा आप सच बोलते रहे, आप हमेशा सच बोलते रहे, आपने कभी झूठ नहीं बोला। जब लोगों की तस्दीक आपने ले ली, जब लोगों की गवाही आपने ले ली, जब लोगों की शहादतें आपने ले ली, तो आपने ऐसे मौके पे फरमाया, ऐ दुनिया के लोगों, जब तुम मुझे इतना सच्चा समझते हो और मैं ये कह दूं, मैं तुम्हें ये कह दूं, इस पहाड़ी के नीचे एक लश्कर छिपी हुई है, एक लश्कर छुपा हुआ है, एक फौज जो कि इंतहाई खतरनाक फौज है और वो तुम्हारे पर हमला करने के लिए तैयार है, क्या तुम मेरी बात की तस्दीक करोगे? सब्र का बिल्कुल कर लेंगे। आपने फरमाया कि यहाँ नाहोर में कहूँ है, क्या मेरी बात को मानोगे? कहा बिल्कुल, क्यों नहीं मानेंगे। जब 40 साल तक कोई झूठ नहीं बोल सकता तो आज वो कैसे झूठ बोलेगा? आप झूठ बोल ही नहीं सकते। नबी अकरम ने फरमाया, इतना भरोसा मेरे ऊपर, हाँ, इतना यकीन है मेरे ऊपर, हाँ, इतना ज्यादा मेरे ऊपर भरोसा करते हो? कहा। नबी अकरम ने फरमाया, आओ दुनिया की सबसे सच्चाई बात मैं तुम्हें बताऊं, आज तक जो हमेशा सच बोलती आया है, आज तुम्हारे दरमियान सबसे सच्ची बात मैं बोलने जा रहा हूँ। वो सच्ची बात ये है, आई मक्का वालो, आई अरब वालो, तुम अपनी ज़बान से ये कह दो, ला इलाहा इल्लल्लाह वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। दाई बना करके भेजे गए, तथस्तु शंबल ग्राम सौते से जाती वज्जिता, ऊंची जगह में खड़े होकर के लोगों को दावत देंगे, अल्लाह की तरफ बुलाएंगे। गौर से सुनो, नबी अकरम उस ऊंचाई में दावत दे रहे हैं, लोगों मैं तुम्हें बुलाता हूं अल्लाह की तरफ, मैं तुम्हें दावत देता हूं एक सच्चे रब की तरफ। ये दुनिया के अंदर जितने माबूद हैं, ये माबूदाने बातिल है, ये झूठे माबूद है, जिसके तुम इबादत कर रहे हो, मा ला यज़ुर्रुहुम वला यनफ़अहुम, ये ना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते, न तुम्हें फायदा पहुंचा सकते। फ़इन फ़अल्ता फ़इन्नका इज़्ज़म मिनज़्ज़ालिमीन, हाँ इतना जरूर होगा, तुम अल्लाह को छोड़ करके इनकी इबादत करोगे तो इतना जरूर होगा कि तुम जन्नत में नहीं जहन्नम के अंदर जाओगे। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदाज से आपने लोगों को दावत दी। और जो मैंने कुरान करीम की जो आयत मैंने पढ़ी है, आइए उसी दो आयतों को समझें, दो टुकड़े को आप समझें और पूरी तकरीर का खुलासा लेकर के जाए। बड़े पते की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुनो मेरे प्यारे
साथियों वमा रसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास बशीरा, नबी अकरम बशारत देने वाले बना करके भेजे गए। आपने बहुत सारी बशारतें सुनाई, आपने बहुत सारी खुशखबरियां सुनाई, आप मुबश्शिर बन करके दुनिया के अंदर आए, आप मुबश्शिर बन करके दुनिया के अंदर आए, आपने बशारत दी तो इस अंदाज से बशारत दी, ऐ दुनिया के लोगों मैं तुमसे बशारत में तुम्हें दे रहा हूँ, मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूँ। सफा पहाड़ पे खड़े होकर के, जो कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, ये सफा पहाड़ के ऊपर मैं तुम्हें जिस चीज की मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ, मैं तौहीद की तरफ जो तुम्हें बुला रहा हूँ, अगर तुम तौहीद के ऊपर कायम दायम रहे, अगर तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ ये नहीं कहते कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गारंटी ले रहा है, जमानत ले रहा है कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, सिद्क़े दिल से जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, वो जरूर जन्नत के अंदर दाखिल होगा। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तो इसका फायदा है ये नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा, ओ अरब के लोगों तुम जन्नत के अंदर दाखिल होगे, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें बशारत दे रहे हैं। वो मुबश्शिर बशारत देने वाला इस अंदाज से बशारत देता है। कभी फरमाया नबी अकरम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी इसी हाल में मरा, इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपने मुस्नद के अंदर बाकायदा जिक्र किया है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देता है। नबी अकरम बशारत किस अंदाज से कभी आपने दी, आपने कभी इस अंदाज से लोगों को समझाया, आपने कभी लोगों को इस अंदाज से बताया, अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह सही मानों में कह रहे हो, सिद्क़े दिल से कह रहे हो, तो सुनो मैं तुम्हें एक और बशारत सुना रहा हूँ, एक तुम्हें और खुशखबरी सुना रहा हूँ, एक और शुभ समाचार मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होंगे। उन तमाम लोगों में अल्लाह ताला एक आदमी को बुलाएगा, उन तमाम लोगों में अल्लाह ताला अपने एक बंदे को बुलाएगा। वो बंदा जैसे ही अल्लाह के पास आएगा, अल्लाह के पास जैसे ही आएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके सामने 99 रजिस्टर खोल देंगे, 99 रजिस्टरों के सामने रखेंगे, जो कि गुनाहों का रजिस्टर होगा, और गुनाहों का रजिस्टर छोटा सा नहीं होगा। हदीस के अल्फाज है, मद्दल बसर, जहाँ तक निगाह जाती है, जहाँ तक नजर पहुँचती है, उतने बड़े बड़े रजिस्टर होंगे जो पूरे के पूरे गुनाहों से भरे हुए होंगे। एक कुसियार गांव के लोगों, अररिया के मेरे प्यारे भाइयों और बिहार के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सामीन, गौर से जरा सुनो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बशारत अंदाज से सुनाई।